Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you on my YouTube channel. With hope so that you all will be fine. Here is Miss Sabeen Zahoor, plant pathologist. In our today's lecture, we are studying the kingdom fungi. Kingdom fungi is the part of first year biology. Kingdom fungi is the chapter in which all the funguses are placed. In today's lecture, we are discussing about the nutrition in the fungi. Because nutrition is very important process, fungi are heterotrophs. Fungi, they are not able to prepare their own food material. So how they take their nutrition? So आज का डिस्कशन हमारा किस बात पर है? आज का डिस्कशन हमारा टोटली डिपेंड करता है nutrition in fungi. So first of all, we have to discuss in our today's lecture. We will find out the answer of some important questions, and the questions are: what are fungi? How fungi take their nutrition? What is mutualism? What are lichens? What are mycorrhizae? How mycorrhizae take their nutrition? Where the mycorrhizae are lived? So these are the important questions. We have to find out the answer of these important questions in our today's lecture. So हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंजाई को. फंजाई क्या होते हैं? So fungi are the unicellular to the multicellular, thalloid, heterotrophic, eukaryotic living organisms having a body called the mycelium. The mycelium is made up of the hyphae, which are non-chlorophyllous, having the cell wall, and their cell wall is made up of by the chitin. Usually, the reproduction in the fungi is asexually by means of the spores. Fungi are the heterotrophs. They take their nutrition by the absorption. The organism in the kingdom fungi include mushrooms, yeast, mold, rust, smuts, puffballs, truffles, morels, and the moles. Fungi are not the true plant and not the animals, because fungi having some characters like the plant and some characters like the animals. Fungi resemble with the plants in having the cell wall, because plants having the cell wall, lacking of the centrioles because plants don't have any centriole, and being non-motile because fungi are non-motile whereas plants are also non-motile. So these are the characteristics of the fungi which are resemble with the plants, whereas some characteristics are the like animal like characteristics of the fungi. These characteristics are resemble with the animals, but they are not the true animals. Fungi are not the true animals. So कौन से characteristics होते हैं ऐसे? Fungi also resemble with the animals because they are heterotroph. Fungi are also heterotrophs. Animals are also heterotroph. Lack of the cellulose in the cell wall, because fungi having the cell wall but cellulose is not present. Fungi having the cell wall which having chitin. In the cell wall of the fungi, chitin is present. When they having the chitin, it's mean that cell wall is made up of by the chitin. It means that fungi are neither completely the plant or nor animal. That's why fungi are not placed in the animal and not placed in the plants. फंजाई के लिए एक अलग से किंगडम बना दिया गया और उसका नाम है किंगडम फंजाई. Detail studied also confirm that fungi are different from the other living organisms. They are very much unique. Fungi कैसे होते हैं? They are unique. They are not the completely animal. They are not the completely plants. Having the some characteristics of the animals and having the some characteristics of the plants. So with hope कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि फंजाई क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं. Now we have to move forward on the topic nutrition in the fungi, because nutrition is very important process in the fungi. Fungi are taking the nutrition by the process of the absorption. All fungi like chlorophyll are heterotrophs, obtain carbon and energy from the organic matter. They obtain their food by direct absorption from the immediate environment and are thus absorptive heterotrophs.
and they are called absorptive heterotrophs. Different modes of the heterotrophic nutrition in the fungi: saprotrophs, parasites, and mutualistic. So, what are the saprotrophs? Those fungi which obtain their food, means energy, carbon, and nitrogen, directed by the dead organic matter, are called the saprotrophs or the saprobic fungi. They are also called the decomposers, right? So saprotrophic जो न्यूट्रिशन होती है उसमें क्या करते हैं, फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने लिए फूड मटेरियल लेते हैं। जबकि सेकेंड टाइप होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में फंजाई क्या करते हैं, दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट। Those fungi which absorb nutrition directly from the living host cytoplasm are called the parasitic fungi. पैरासिटिक फंजाई दो तरह के होते हैं, पैरासिटिक फंजाई दो तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड द फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। एक के लिए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जिनके लिए कंपलसरी होता है कि वो लिविंग होस्ट से लें, और फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होते हैं जिनके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो लिविंग से लें या फिर डेड से लें। Now the third type of the nutrition is the mutualism, mutualistic fungi. Those fungi which are taking nutrition from the symbiotic association, because fungi are formed the association in which host and the fungi both are beneficial for each and everyone, for each and other. Those fungi which form such symbiotic association with other living organism in which both the partner of the association get the benefit, mutual benefit from each other, are called the mutualistic fungi, and such association are called as the mutualistic symbiotic association. म्यूचुअलिस्टिक फंजाई कौन से फंजाई होते हैं, जो कि अपने लिए फूड मटेरियल लेते हैं लिविंग होस्ट के साथ, लेकिन उनका जो लिविंग होस्ट होता है वो उनसे 50% बेनिफिट लेता है, तो 50% बेनिफिट उनको देता है। इट्स मीन दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन इन दी शेयरिंग। 50-50% की शेयरिंग होती है। 50% फंजाई वर्किंग करती है होस्ट के लिए, और 50% होस्ट वर्किंग करता है फंजाई के लिए to produce the food material. So there are the two main types of the mutualistic symbiotic association formed by the fungi. Fungi form the two key mutualistic symbiotic association. There are lichens and the mycorrhizae. So these two topics are today's discussion main topics. हमारे आज के डिस्कशन के जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, लाइकन्स एंड माइकोराइजी. सो नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन द लाइकन्स. म्यूचुअलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फंजाई और होस्ट दोनों एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसमें दोनों को फायदा होता है, दोनों म्यूचुअल बेनिफिट लेते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है म्यूचुअलिज्म. विद होप सो that you have understood with the term mutualism. So we have to discuss lichen. What is lichen? A lichen is a composite organism that emerges from the algae and cyanobacteria, living among the filamentous hyphae of the fungi in a mutual beneficial symbiotic relationship. Lichen उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि एल्जी के साथ, यानी एल्जी के कौन से मेंबर, साइनोबैक्टीरिया और फिलामेंटस हाइफी, दोनों मिलकर एक ऐसी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें सिम्बियोसिस होता है, और इस म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन में दोनों एक दूसरे से फायदा लेते हैं. द फंजाई टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एल्जी और द साइनोबैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. क्योंकि अल्जी और साइनोबैक्टीरिया दे हैविंग द पिगमेंट, दे आर द क्लोरोफिलस. जब भी क्लोरोफिलस होते हैं सो इट्स मीन दे आर फोटोसिंथेटिक. व्हेन दे आर फोटोसिंथेटिक सो दे कैन प्रिपेयर देयर न्यूट्रिशन, एंड फंजाई डिपेंड ऑन द algae for taking their nutrition. So they are taking 50% benefit from the algae. When algae give the 50% benefit to the fungi, so fungi are working for the
algae. What they are working for the algae? फंजाई भी algae के लिए काम करते हैं। और ये फंजाई क्या काम करते हैं algae के लिए? फंजाई एक ऐसा म्यूचुअलिस्टिक पार्टनरशिप का रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें सिम्बियोटिक पार्टनर्स होते हैं। सिम्बियोटिक पार्टनर्स इन द लाइकन्स, lichens are the mutualistic and have the symbiotic association between certain fungi, mostly the ascomycetes. The members of the ascomycota are called the ascomycetes. And the imperfect fungi. Imperfect fungi means the member of the deuteromycetes. The member of the deuteromycota are called the fungi imperfecti. Fungi imperfecti के member of the ascomycetes, and the few member of the basidiomycetes. What are basidiomycetes? Basidiomycetes are the member of the basidiomycota. Basidiomycota के members, ascomycota के member and deuteromycota के member, and certain photoautotrophs, either green algae or the cyanobacterium, or sometimes both. They are making an association in which both are taking the mutualistic benefit, right? They are symbionts. They have a symbiotic relationship between a fungus and an algae. Neither of these organisms can survive or their own. Neither of these organisms can survive on their own. इनमें से कोई भी एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं जो कि अपने ओन पर सरवाइव कर सके। यानी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स, बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर्स, डिट्रोमाइसिटीज के मेंबर्स और कुछ साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स और फोटोऑटोट्रॉफ्स, ये दोनों एक ऐसी एसोसिएशन बना के रहते हैं जिसमें ये दोनों रिलेशनशिप रखते हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये अपने ओन पर सरवाइव नहीं कर सकते। फंजाई की जरूरत होती है अलजी की और अलजी की जरूरत होती है फंजाई की, राइट? सो वी हैव टू डिस्कस व्हाट दे आर टेकिंग द बेनिफिट फ्रॉम ईच एंड अदर। सो म्यूचुअल बेनिफिट क्या होते हैं? इन द लाइकन्स, फंजाई प्रोटेक्ट द algal partners from the strong light. फंजाई का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना और एब्जॉर्प्शन करना। किसके लिए? algae के लिए। Whereas algae performing the function of the photosynthesis for fungi. फंजाई के लिए न्यूट्रिशन की प्रिपरेशन का काम किसका होता है? algae का। और फंजाई क्या काम करते हैं algae के लिए? ये प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। सो जब ये दोनों मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के साथ बेनिफिट लेते हैं, सो ये एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। वेयर आर द लाइकन्स आर ग्रो? एरिया वेयर लाइकन्स आर ग्रोइंग, वो कौन से एरिया हैं जहाँ पे लाइकन्स ग्रो करते हैं? लाइकन कैन ग्रो एट सच प्लेसेस such as the bare rocks, right? Or the damp soil areas where neither of the components alone can grow. ठीक है, एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल बंजर से पहाड़ हो या पत्थर हो या फिर थोड़ी सी गीली और नम सी जगह हो, वहां पर लाइकन ग्रो कर। बेसिकली हम एक लाइकन कंबाइंड टर्म यूज कर रहे हैं किसके लिए? अलजी और फंजाई के लिए। अलजी की साइड से सम साइनोबैक्टीरिया होते हैं और फंजाई की साइड से कुछ एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं। ये मिलकर एक ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें दोनों म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप परफॉर्म करते हैं, दोनों हाफ ऑफ बेनिफिट लेते हैं और एक इस एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर रॉक्स हो, बियर रॉक्स हो और खुश्क जगह हो या नम जगह हो या फिर पहाड़ हो, चट्टानें हो, वहां पर ये ग्रो करते हैं। या फिर दरख्तों के ट्री ट्रंक में भी ये ग्रो कर जाते हैं, राइट? So now we have to discuss the ecological importance of the lichens, because ecologically lichens are very much beneficial for the environment. From the ecological point of view, lichens are very important because they are serve as the bioindicator for air pollution. क्योंकि फंजाई एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है? फंजाई डीकम्पोजर्स भी तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? सो ये क्या काम करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। और अलजी का क्या काम हो रहा है? अलजी परफॉर्म कर रही है फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही है और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रही है। यानी
एयर को क्लीन कर रही है, एयर पॉल्यूशन को कम कर रही है। यही वजह है कि एयर पॉल्यूशन को कम करती है, बायो इंडिकेटर कहलाती है। सो लाइकेंस के बहुत इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। इकोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं लाइकेंस, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? विद होप सो कि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन रेज किया था, व्हाट इज फंजाई एंड व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्रोसीड आउट करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी माइकोराइजी। माइकोराइजी क्या होते हैं? माइकोराइजी आर बेसिकली द फंगल हाइफी dramatically increase the amount of the soil contract and total surface area for absorption and help in the direct absorption of the nutrients from the soil. The plants, on the other hand, supplies organic carbon to the fungal hyphae. राइट? सो बेसिकली होता क्या है कि माइकोराइजी वो फंजाई होते हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स में सरवाइव करते हैं, प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। कौन सी रूट्स में रहते हैं? माइकोराइजी बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं। सो पहले तो हम माइकोराइजी की टर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। माइको मीन्स द फंजाई एंड राइजी की वर्ड निकली है, राइजोइड से, एंड राइजोइड्स मीन द रूट्स। सो वो फंजाई जो कि प्लांट्स के रूट्स में सरवाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड दी माइकोराइजी फंजाई। माइकोराइजी फंजाई वो फंजाई होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर सरवाइव करते हैं। नाउ व्हाट आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स? Leguminous plants are those plants which are producing legume and pod as the fruit. फलीदार जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। माइकोराइजाई फंजाई लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं? वहां पर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और रूट्स में रहते हैं। Now there are the two types of the mycorrhizae. First one is the endomycorrhizae and other one is the ectomycorrhizae. Endomycorrhizae and ectomycorrhizae क्या होता है? Endo means the inside and mycorrhizae means the fungi which are living in the roots of the leguminous plants. And ectomycorrhizae, ecto means होता है outside. किसके? माइको। फंजाई कहाँ पर है? माइको मीन्स द फंजाई एंड राइजी मीन्स द राइजोइड्स। ऐसे फंजाई जो के रूट्स के आउटसाइड पे रहते हुए काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्टोमाइकोराइजी कहलाते हैं। In endomycorrhizae, the fungal hyphae penetrate the outer cells of the plant's root, forming the coils, swelling and minute branches. Forming the coils, swellings and minute branches, and also extend out into the surrounding soil. They are also known as the vesicular arbuscular mycorrhizae. इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? वैम फंजाई कहते हैं। वैम फंजाई अगर आपसे पूछा जाए क्या होते हैं, सो आप लोगों ने याद रखना है एंडोमाइकोराइजी को हम बोलते हैं वैम फंजाई। व्हाट इज वैम फंजाई? Vesicular, arbuscular mycorrhizae are the worm fungi. Fungus does not form the sheet around the roots. ये फंजाई रूट्स के सराउंडिंग पर कोई शीट नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं? ये फंजाई रूट्स के इनसाइड पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेशन के बाद रूट के अंदर ही स्वेलिंग रखते हैं, स्वेलिंग परफॉर्म करते हैं और स्वेलिंग की वजह से फंजाई के हाइफी इनसाइड ग्रो करते रहते हैं। राइट? सेकेंड टाइप ऑफ द माइकोराइजी इज द एक्टोमाइकोराइजी। एक्टोमाइकोराइजी मीन्स आउटसाइड, माइको मीन्स द फंजाई, राइजी मीन्स द रूट्स। सो वो फंजाई जो कि रूट्स के बाहर भी रहते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्टोमाइकोराइजी कहलाते हैं। In the ectomycorrhizae, the hyphae is surrounded and extend between the cell but don't penetrate the cell wall of the roots. These are the fungus form the sheet outside the roots. राइट? कौन से फंजाई होते हैं? ये वो फंजाई होते हैं जो कि रूट्स के करीब बाहर एक शीट बनाते हैं और वहां पर रूट्स को कंप्लीटली सराउंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं
Mutualistic association between the fungi and pines and the fides plant. बड़े बड़े जो पाइनस के दरख्त होते हैं उनके दरमियान जो बेसिकली म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है वो किसकी वजह से होती है? एक्टोमाइकोराइजी की वजह से होती है। और दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल बिकॉज एक्टोमाइकोराइजी की वजह से ही प्लांट्स की रूट जमीन के अंदर, जमीन के साथ, सॉइल के साथ अटैचमेंट रखती हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ठीक से ग्रो नहीं कर पाते, तो पता चलता है भाई इनकी रूट्स में फंजाई नहीं है, तो इस वजह से सॉइल और रूट्स के दरमियान एक एसोसिएशन नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ज़मीन में अपना सर्वाइवल नहीं रख पा रहा। जो हायर क्लास ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में 90% रूट्स में एक्टोमाइकोराइजी मौजूद होते हैं, क्योंकि एक्टोमाइकोराइजी क्या करते हैं? रूट्स के दरमियान और सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान एक ऐसी अटैचमेंट फॉर्म करते हैं जिसमें रूट्स के बाहर रहते हुए अपने लिए रूट से बेनिफिट ले लेते हैं, और प्लांट्स के लिए क्या काम करते हैं? अपना हाइफी को पेनिट्रेट करते हुए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस द सिम्बियोटिक पार्टनर्स। जैसे हमने लाइकन्स में बात की थी कि सिम्बियोटिक पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं? एस्कोमाइसिटीज, बेसिटोमाइसिटीज, ड्यूटोमाइसिटीज के मेंबर्स प्लस साइनोबैक्टीरिया और फाइटोऑटोट्रॉफ्स के मेंबर्स। ठीक है, फोटोऑटोट्रॉफ्स के मेंबर्स क्या कहलाते हैं? लाइकन के सिम्बियोटिक पार्टनर कहलाते हैं। ऐसे ही हमने डिस्कस करना है कि भाई सिम्बियोटिक पार्टनर ऑफ माइकोराइजी क्या कहलाते हैं। माइकोराइजी आर द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन द सर्टेन फंजाई एंड रूट्स ऑफ द वेसिकुलर प्लांट्स। ठीक है, फंजाई और प्लांट्स की रूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ये बेसिकली क्या कहलाता है? ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहलाता है। इसमें जो पार्टनर्स हैं वो कौन है? रूट्स है और फंजाई है। रूट फर्स्ट पार्टनर है और फंजाई सेकंड पार्टनर है, राइट। रूट्स ऑफ द कौन से प्लांट है? वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स में ये मौजूद होते हैं। अबाउट 95% ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स में ये फंजाई मौजूद होते हैं, सिम्बियोटिक पार्टनर्स होते हैं और प्लांट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अटैचमेंट विद द सॉइल प्रोवाइड करते हैं। मोर देन 95% ऑफ द प्लांट्स आर सिम्बियोन्ट्स ऑफ द माइकोराइजी। माइको मीन्स द फंगस एंड राइजी मीन्स द रूट, राइट। राइजी की वर्ड निकली है राइजोम से। ठीक है, माइकोराइजी आर ऑफ द टू टाइप्स, एक्टोमाइकोराइजी एंड एंडोमाइकोराइजी। एक्टोमाइकोराइजी कौन से माइकोराइजी होते हैं? वो जो कि प्लांट की रूट के बाहर रहते हुए अपना माइसीलियम और एक शीट बनाते हैं और प्लांट को प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करके देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके देते हैं और अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। जबकि एंडोमाइकोराइजी क्या होते हैं? एंडोमाइकोराइजी वो माइकोराइजी होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स के अंदर सरवाइव करते हैं। Is that clear to all of you? Here you can see in the picture that mycorrhizae are very important. They can live in the roots of the plants, inside the root of the plant and outside the root of the plant. अगर माइकोराइजी रूट ऑफ द प्लांट के अंदर रहते हैं तो एंडोमाइकोराइजी कहलाते हैं, अगर आउटसाइड द रूट रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? यस, एक्टोमाइकोराइजी कहलाते हैं, राइट। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। We have to discuss the ecological benefits of the mycorrhizae. Mycorrhizal fungi allow the plants to draw more nutrients and water from the soil. They also increase plant tolerance to different environmental stresses. Moreover, these fungi play a major role in the soil aggregation process and stimulate the microbial activity. These are the very important benefits of the mycorrhizal fungi, because mycorrhizal fungi के इकोलॉजिकली बेनिफिट होते हैं। जैसे हमने लाइकन्स के बारे में कहा था, लाइकन्स क्या कहलाते हैं? बायो इंडिकेटर कहलाते हैं। ऐसे ही माइकोराइजी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फंजाई के बारे में, फंजाई की न्यूट्रिशन के बारे में, म्यूचुअलिज्म के बारे में और लाइकन्स और माइकोराइजी के बारे में। विद होप सो कि हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन रेस किए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस थे? व्हाट आर फंजाई, हाउ फंजाई टेक देयर न्यूट्रिशन, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, व्हाट इज लाइकन, व्हाट इज माइकोराइजी।
So in the end of the lecture, you have got the answer of the mentioned question which we raised in the beginning of the lecture. So this is all about the today's lecture. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फंजाई, फंजाई की न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, हमने फंजाई में म्यूचुअलिज्म को डिस्कस किया, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में किस तरीके से बेनिफिशियल एसोसिएशन फॉर्म होती है, किस तरीके से म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है जिसमें रिलेशनशिप होता है, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बेनिफिट लेते हैं, ये डिस्कस किया। और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की दो मेन एग्जांपल को डिस्कस किया। किसको डिस्कस किया हमने लाइकन्स को डिस्कस किया कि लाइकन्स क्या होते हैं। लाइकन्स एक ऐसी एसोसिएशन होती है बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। और सेकंड हमने डिस्कस किया माइकोराइजी फंजाई। माइकोराइजी फंजाई वो फंजाई होते हैं जो कि प्लांट्स की रूट्स के अंदर एक ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें रूट्स को भी बेनिफिट मिलता है और फंजाई को भी बेनिफिट मिलता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, so you must have to raise your question. I will definitely give you the answer of your each and every question, inshallah. You can write the question in the comment box. You can, so with hope so कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। If you have any query, if you want to ask me any question, so you must have to ask me. I will definitely give you the answer of your each and every question, inshallah. If you want to ask me any question, so you can write your question in the comment box. You can write also the question in the text window box, and also email me if you want to ask me any question. So inshallah definitely I will give you the answer, inshallah. इसके अलावा if you like my today's lecture, so please like my video, comment on my video, and also share with your friends, your colleagues. If you like my today's lecture, so please like my video, please comment and share with the others. If you like my today's lecture, so please like my video on the channel The World of the Plants, comment in the comment box, and share with your other friends and colleagues. And if you like and subscribe my channel, you will have got the notification of the further videos. So please subscribe my channel and press the bell icon for the further informative videos notification. Thank you so much. This is all about the today's lecture. This is Miss Sabeen Zahoor, plant pathologist. Have a wonderful day. Allah Hafiz.